आपको। बिल्कुल बिल्कुल आई कैन हियर। ओके। अच्छा सर, जैसा कि आपका टाइम बहुत कीमती है, आपकी और भी एक्टिविटी है, तो हम चाहेंगे कि आज के इस टॉपिक के ऊपर आप बात करें, द फ्यूचर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। ठीक है, और चैलेंजेस एंड इनोवेशन। तो आप अपनी ओपिनियन जो है और वो आप दे के तो अपनी एक्टिविटी में जो है वो शामिल हो सकते हैं। हमारे ऑडियंस जो है वो अभी कुछ आ भी रहे हैं और अभी ऑनलाइन भी हैं कुछ, और हाल में भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको प्रॉपर जो है वो स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अपना माइक जो है उसको ऑन कीजिएगा, अपना माइक आपका शायद। ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी गुड वालेकुम। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Thank you, man, for providing this opportunity. And first of all, happy Pi Day to everyone. So we are also having a celebration this time in LUMS. So we have special shirts, and there are multiple things we are doing at LUMS. And I'm very happy to see that UMT, particularly Imran Aschad and his team, is doing so much to promote mathematics within the institutes and all over the country. And I think this is the utmost responsibility we bear to popularize this wonderful subject among the young minds. Okay, topic थोड़ा सा काफी diverse है and काफी heavy है. The future of mathematical education, global challenges and innovation. And I try to collect some interesting, uh, you can say, words by some senior mathematicians, some senior researchers, some Nobel laureates about addressing this particular problem. And when we say that the future of mathematical education, so basically we are addressing the big picture of education and global challenge. Mathematics is now becoming a language to address challenges. And not now, but even in the past, people have been using mathematics to address different challenges. So let's kick start this particular presentation with the key questions, which was basically mentioned by Dr. Matsev in his book. The book title is, he's a famous Ukrainian psychologist, and he has written a book, Work of the Mind in the Task of Execution. And he brought up in this particular book some very important questions. And according to him, and basically, he wrote that book from the perspective of Ukraine. But I think the word, what he said, is very much relevant to every country. And according to him, the educational crisis is a real dilemma in front of in most of the countries. And what are the important key questions? So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके की क्वेश्चंस को एलेबोरेट कर लिया जाए. एंड उधर आई थिंक डॉक्टर मार्टसेव जो हैं उन्होंने बड़े सही तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है. सो अकॉर्डिंग टू मार्टसेव, one big challenge for the today's teacher: how can student be actively engaged in educational activities during class? कि स्टूडेंट्स को हम किस तरीके से एक्टिवली इंगेज कर सकते हैं क्लास में. एंड दिस इज अ सीरियस चैलेंज नाउ, जबकि अटेंशन स्पैन जो है स्टूडेंट्स का वो काफी हद तक श्रिंक कर चुका है. नंबर वन. नंबर टू, वी आर डीलिंग विद जनरेशन जी. एंड पुरानी जनरेशन के लोग जो थे वो तो, यानी हमारी जनरेशन के लोग, वो तो बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट थे. जैसे मर्जी टीचर होते थे वो बोर्ड पे आके लिखते रहते थे, हम अच्छे बच्चों की तरह नोट करते रहते थे. But with this generation, we can't repeat those kind of ways of teaching. So, how can we engage our student, actively engage in the educational activities in the class? This is the first question. Second question is, what forms and method of teaching can be used to create an inclusive learning environment? अच्छा, ये इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप स्कूल लेवल में पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट ड्रीम एंड एम्बिशन. अगर आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स, अगेन वहां पे डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है. कोई स्टूडेंट किसी
कोई पायलट बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहा है। एंड आप जो सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ रेलेवेंस कैसे क्रिएट करते हैं। एंड लम्स के अंदर अगर हम लोग देखें, हम लोग जो मैथ के कोर्सेज पढ़ा रहे होते हैं, कैलकुलस की क्लासेस के अंदर हमारे पास तमाम किस्म की ऑडियंस बैठी होती है, जिसमें बायो साइंसेस के भी लोग होते हैं, इकोनॉमिक्स के भी होते हैं, इंजीनियरिंग के भी होते हैं। लेकिन एक मैथ के टीचर या इन जनरल टीचर के लिए इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, सो दैट whatever the subject, whatever the topic is being taught, student find their relevance in that particular teaching. So where student can participate, वो अपना पॉइंट दे सके। सीधी सी बात है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं जाके किसी से बायो की क्लास में जाके बैठूं जिसके कीवर्ड्स भी नहीं मुझे आते, एंड अल्टीमेटली आई विल टेक अ कॉर्नर एंड मैं चुप करके बैठ जाऊंगा अनटिल अनलेस के वाकई ही वो बायो का टीचर मुझे इंगेज करे उन कीवर्ड्स के साथ और बार बार उसमें जो मेरी इंटरेस्ट की चीजें रिलेट करते हुए मुझे इन डिफरेंस फील ना करवाए। बट दिस इज द बिग चैलेंज, खासतौर पे मैथ टीचर्स के लिए, कि इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जहां पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे, अपना ओपिनियन दे। एंड नंबर थ्री के ओके, सारी चीजें एंगेज हो गई, एक स्टूडेंट को आपने एक टॉपिक था वो स्टूडेंट ने समझ लिया, आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो थे उसको टेस्ट कर लिया, बच्चे ने A+ ले लिया उस कोर्स में, एंड यहाँ पे आके बात खत्म हो जाती है। बट द रियल क्वेश्चन इज हाउ दे गेन कॉन्फिडेंस ऑन देयर एबिलिटीज, वेदर दे आर कॉन्फिडेंट कि अगर उनको वाकई कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम दी जाए जिसमें शायद वो स्किल्स यूज हो जो एबिलिटीज उन्होंने गेन की हैं, उन पे वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो A+ मार्क्स, क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला आई थिंक पाकिस्तान के एकेडमिया के साथ ये बहुत ज्यादा है कि A+ डज नॉट रिफ्लेक्ट A+, यानी कि स्टूडेंट ने सक्सेस को टाई अप कर दिया सिर्फ और सिर्फ ग्रेड के साथ, और वो जो सब्जेक्ट की जो ग्रिप का जो कॉन्फिडेंस है वेदर इट इज देयर और नॉट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक कंपोनेंट है जो कि स्टूडेंट क्लासेस से ही, टीचर के अगेन टीचिंग के अंदर ही आता है। अगेन ये क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक देम फील गेन कॉन्फिडेंस and master the educational material. And the last thing, and this is the most important thing जो कि मात्सव ने हाईलाइट किया है, वो ये है कि एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए विच फोर्सेस अ स्टूडेंट टू रीड एंड राइट। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टीचर्स को देखा गया है इंटरव्यूज में भी, कई दफा जॉब इंटरव्यूज में भी हम लोग पूछते हैं कि बुक्स के बारे में बता दें, कौन सी बुक है स्टैंडर्ड बुक, ठीक है टेक्स्ट बुक सबको पता होती है, अदर देन दैट आपकी अब रीडिंग एंड राइटिंग की आदत अगर टीचर्स में नहीं है तो स्टूडेंट्स में तो कभी भी नहीं आ सकती। एंड बहुत ही एक डिसअपॉइंटमेंट होती है अमंग द स्टूडेंट्स के, खासतौर पे A+ A* स्टूडेंट्स जो जितने भी हैं उनके अंदर रीडिंग और राइटिंग की कोई आदत होती नहीं है। एंड रीडिंग एंड राइटिंग के बगैर आपकी थिंकिंग स्किल इवॉल्व नहीं हो सकती, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स है। और वो इंस्टिंक्ट्स ये है कि जब आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, उसमें थिंकिंग प्रोसेस में रीडिंग एंड राइटिंग का कंपोनेंट जो है वो आइसोलेट नहीं आप कर सकते। और यहाँ पे अगेन ही पुट दिस फोर 1 2 3 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर बुक। एंड बाय द वे ही डिडंट ओनली पोज दिस क्वेश्चन, इस पूरी बुक में ही बेसिकली आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ा सा डिलेमा है, वो ये है कि ये जो बुक इन्होंने लिखी है वो रशियन में लिखी है। आपको पता है यूक्रेन की लैंग्वेज भी रशियन ही है, सो रशियन में लिखी है, और जो आर्टिकल छपा था वो रशियन लैंग्वेज में था, जिसका ट्रांसलेट करके ये क्वेश्चन निकाले थे, बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी वेल रिटन आर्टिकल। एंड ही इज अ वेरी वेरी फेमस फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट आई वुड से, or educational psychologists. And these are the four most important questions. And according to Marxev, इस बुक का मैं डिटेल में मूव करता हूँ इसके इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे। ही सेड दैट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो एकेडमिया के अंदर मिसिंग है, वो आर्ट के साथ इन सारी चीजों को कवर किया जा सकता है। जब आप टीचिंग एंड आर्ट को टुगेदर यू मूव इन, एंड यंगस्टर अलोंग विद द सीनियर पर्सन, ये भी एक बहुत गलत किस्म की परसेप्शन बिल्ट हो जाती है व्हेन वी से दैट कि सीनियर पीपल आर कंप्लीटली इररेलेवेंट। वो इररेलेवेंट नहीं होते, ही आल्सो मेड दिस केस कि वो इररेलेवेंट नहीं होते, दे आर द वन जिन्होंने डिफरेंट वेज ट्राई कर लिए होते हैं, एंड दे कैन गाइड इट वेल। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द होल बॉडी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, senior and young people need to work together.
Okay, these are the key questions, and enough with Malsev. Let's take an answer, an eye of an answer कि इनको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है. एंड क्योंकि ये मैथ से रिलेवेंट है, सो मैथ की बात कर लेते हैं. मैथ के आज के डेट में आज की डेट में अगर देखा जाए तो आई थिंक दुनिया का जो सबसे बड़ा मैथमेटिशियन है वो टेरेंस टाउ है. एंड अकॉर्डिंग टू टेरेंस टाउ ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी. अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि he finished his PhD degree at the age of 17 or 18, and he became full professor at UCLA at the age of 21. And 3 to 4 times ये IMO gold medalist हैं, और he has done remarkable work in math, almost all direction. And जो टाओ की एक एडवाइस है, और वो एडवाइस ये है, इमरान काफी डिस्टॉर्शन आ रही है ये वकास की तरफ से. वकास आप अपने आप को म्यूट करेंगे. there is a lot of distortion. Yeah, thank you. Okay, according to Terence Tao, he said that कि मैथ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं और पजल्स होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं. अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैथमेटिक्स की रियल लाइफ एप्लीकेशंस, रियल लाइफ प्रॉब्लम. और ये बार बार लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स इस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हो. तो टाओ के नजदीक ये है कि अगर आप लोगों को मैथ ऐसा सिखाना चाहते हैं कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कर सकें, अकॉर्डिंग टू हिम कि आप इंगेज करें स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में और पजल्स में. और ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और पजल्स होती हैं ये वही रोल प्ले करती हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जैसे जस्ट एज फेबल्स और स्टोरीज, अफसाने, कहानियां, एनेक्डोट्स आर इम्पोर्टेंट टू द यूथ इन अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ. आपको पता है हमारे बड़े बूढ़े कल्चर में लोगों ने डिफरेंट फेबल्स, किस्से, कहानियां बताई होते हैं जिसके थ्रू वो बता रहे होते हैं जिंदगी के लेसन क्या है. अकॉर्डिंग टू टाओ कि अगर आप मैथ की एप्लीकेशन समझाना चाहते हो, सो देर इज ओनली वन वे, engage in mathematical problem solving और पजल सॉल्विंग के थ्रू यू कैन लर्न द वेज कि आप मैथ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, रादर देन बहुत डेकोर करके आपको बताया जाए कि ये मैथ की एप्लीकेशन इस तरीके से ये यूज हो रहा है. समटाइम डेफिनेटली उसमें एग्जेजरेट किया जाता है, लेकिन डेफिनेटली दिस इज द ओनली वे, नॉट द ओनली वे, दिस इज अ वे. देयर कैन बी अदर वेज टू, बट दिस इज हिज बिलीफ. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन है, और आई थिंक ही इज अ रिमार्केबल पर्सन. रशिया के एक सबसे बड़े मैथमेटिशियन है जो कि फील्ड मेडलिस्ट भी हैं, उनका नाम है कोलमोगोरोव. एंड कोलमोगोरोव के बारे में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक रशिया में मैथमेटिक्स की जो फाउंडेशन है 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में, उसमें कोलमोगोरोव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये कोलमोगोरोव के स्टूडेंट है. ही वन द शॉ प्राइज, वोल्फ प्राइज, एंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ही वर्कड इन रशिया एज वेल एज ये फ्रांस में जाते रहे हैं. एंड ही हैज डन रिमार्क. इन्होंने ना वो दोनों चीजें देखी थी सोवियत टाइम पे जो मैथमेटिक्स जो मॉस्को में चल रहा था, एंड फ्रांस में जो एब्स्ट्रैक्ट मैथ उस वक्त बूरबाकी ग्रुप था वो ग्रो कर रहा था. तो इन्होंने वो अप्लाइड ओरिएंटेड, अभी काफी लोग हैं जिनको शायद आइडिया नहीं कि रशिया में मैथ किस तरीके से पढ़ाया जाता है. सो आर्नोल्ड ने रशियन वे ऑफ टीचिंग मैथ जो है उसको भी काफी हद तक पॉपुलराइज करवाया. एंड इन्होंने काफी बैश किया बुलवाकी ग्रुप को कि एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स जो है उसको एब्स्ट्रैक्शन के साथ यंगस्टर्स को पढ़ाने के क्या नुकसान हो सकते हैं. एंड आर्नोल्ड वाज वेल नोन एज अ पॉपुलराइजर ऑफ मैथमेटिक्स. इसको आप इनके बारे में आप पढ़ें तो आपको नजर आ जाएगा. ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स एंड मेनी ऑफ हिज बुक वर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश. अच्छा, ज्यादातर इन्होंने लिखा या तो फ्रेंच में लिखा है या रशियन में लिखा है, लेकिन वो बुक इतनी को इन्फ्लुएंशियल थी कि वो लेटर ऑन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और अब इंग्लिश में इनकी राइटिंग मिलती है. आर्नोल्ड के मुताबिक मैथ की टीचिंग कैसे होनी चाहिए, एंड बाय द वे ये आर्टिकल्स लिंक में हैं, सो आई विल शेयर दीज लिंक्स. मैं स्लाइड्स भेज दूंगा इमरान को, तो वो उसमें सारे लिंक्स आर्टिकल्स गिवन है. सो व्लादिमीर आर्नोल्ड ने ये कहा था कि ही वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट कि मैथ की टीचिंग जो होती है उसकी ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने चाहिए. इंट्यूटिव ओरिएंटेड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ड्रिवन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बगैर तो मैथ चलता ही नहीं है, एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड. यानी ये एक ऐसा कंपोनेंट है इसके बगैर आप रेलेवेंस क्रिएट कर ही नहीं सकते. यू कांट कन्विंस स्टूडेंट कि भाई मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. हम लोग जितना मर्जी कहते रहे मैथ इज द मदर ऑफ साइंसेस, जो मर्जी है, ये वो वाली जनरेशन नहीं है जिनको आप
जिसे कहते हैं बस लंबे लंबे नारे मार के आप कन्विंस कर लेंगे कि मैथ इज द मदर ऑफ साइंसेस। व्लादिमीर आर्नोल्ड ने उस वक्त ही लिखा था ये, वैसे दिस इज अ वेरी रेलेवेंट वर्ड। इसने कहा था इंट्यूशन फर्स्ट, कंसेप्ट ड्रिवन सेकंड एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड, दीज आर द वेज ऑफ टीचिंग मैथ, इसके अलावा और कोई वे नहीं। और इसको एड्रेस करने के लिए उसने वेज भी बताए थे। सबसे पहली चीज ये है कि मैथमेटिक्स शुड बी रूटेड इन रियलिटी, कि जो आप क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं उसका रियल लाइफ कनेक्शन जो है वो बिल्ड करना चाहिए। और वो मैथमेटिक्स का किस तरीके से बिल्ड होता है, जब आप प्रॉब्लम्स वो बताते हैं जो कि इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रॉब्लम के सॉल्व दिस इंटीग्रल, why not to give a problem जो कि descriptive हो, which is really based on some problem which is coming through physical phenomena या इंडस्ट्री से आ रही है, कहीं से आ रही है। एंड दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट। मैं ये भी बता दूं कि इसने उससे रेलेवेंट आर्नोल्ड की एडवाइस क्या थी और आर्नोल्ड ने क्या किया था। ही हैज रिटन मेनी बुक्स, सो हिस्टोरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। अच्छा, ये आर्नोल्ड का जो पॉइंट है ना, ये इतना को इम्पोर्टेंट है कि आप जब कहते हैं ना कॉन्सेप्ट ड्रिवन में एक तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कॉन्सेप्ट की एक जो खासा होता है, जो उसकी रूह होती है, वो उसकी होती है डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया। भाई बैठे बिठाए मैथमेटिशियंस को क्या बनी थी कि उन्होंने ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन निकाल दी, और वो भी इतनी एक्सियोमेटिक, बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट। बैठे बिठाए मैथमेटिशियन को क्या पड़ा था, उन्होंने रिंग इंट्रोड्यूस करवा दिया। व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट। एंड जो लोग रिसर्चर्स हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी पता है कि कीवर्ड्स ऐसे नहीं आ जाते मैथ में। कीवर्ड्स के पीछे कोई ना कोई एक रीजन होती है। यानी कि मैथ के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका कोई ना कोई शान नजूल है, उसकी हिस्टोरिकल स्टोरी है डेवलपमेंट की। अकॉर्डिंग टू विक्टर आर्नोल्ड के हिस्टोरिकल अकाउंट जरूर बताएं कंसेप्चुअल अप्रोच। हिस्टोरिकल कंसेप्चुअल अप्रोच के फॉर इंस्टेंस कैलकुलस की बात कर लेते हैं कि आर्किमिडीज ने पाई की मयरिंग स्टार्ट की थी और उसने मेथड ऑफ एग्जॉर्शन उस टाइम पे स्टार्ट किया, और करते 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 लोगों ने उसको फॉलो किया। एंड उसको इवॉल्व होता गया हर दौर में, होते 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 न्यूटन के पास जब वो पहुंचा, देन न्यूटन गिव एन आइडिया जिससे वो सारे का सारा कंसोलिडेट हो गया। लेकिन अगर आप स्टूडेंट को डायरेक्टली डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सिर्फ कंप्यूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, विदाउट टेलिंग द स्टोरीज, द बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल अकाउंट, कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ट होता। वो भी जो कहते हैं ना, मुझे समझ आ गई क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर विदाउट हिस्ट्री। एंड थर्ड ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। ये टाउ ने भी कहा था, ये आर्नोल्ड भी कह रहा है। एंड अवॉइडिंग ओवर रिलायंस ऑन रोट लर्निंग, ये इतना को इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। शायद हमारे दौर के लोग जो हैं उन्होंने बहुत सफर किया, इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले याद किए, डेरिवेटिव के सारे फार्मूले याद किए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट के बहुत ही गलत किया, क्योंकि आज के दिन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथ है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की बर्थडे भी है जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब लोगों ने कहा था फिजिक्स खत्म हो गई है, ही गेव अ न्यू थ्योरी, और जिसके बाद से आज तक इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अनएड्रेस हैं। एंड एक दफा आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड आइंस्टाइन का आगे से जवाब ये था कि आई डोंट नो। और मेरा ख्याल है कि इस हॉल में आपके पास जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर उनसे पूछ लें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो मेरे ख्याल से काफी सारे लोग बता देंगे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है। एंड आइंस्टाइन ने कहा था कि ये अननेसेसरी डिटेल है जिसको मैं मेमोराइज करना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं समझता। एंड रॉट लर्निंग वाला जो एक एलिमेंट है मैथ के साथ, आप स्टूडेंट से पूछ के देखें मैथ में बुरा क्या है, मुश्किल क्या है, कैलकुलस में क्या मुश्किल है, तो आपको एक ही जुबान मिलेगी कि इतने सारे फार्मूले रटने पड़ते हैं। कैलकुलस के एग्जाम से पहले आप बच्चों को देखें, वो हाथ में वो फार्मूला शीट पकड़ के बैठे होते हैं, विच इज कंप्लीटली यूजलेस पैथेटिक प्रैक्टिस। एंड मेरा मैं यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम यूनिवर्सिटीज को, जो भी टीचर्स हैं जो यहाँ पे सुन रहे हैं, आप लोग हम लोगों ने लम्स में हम लोगों ने फार्मूला शीट देना शुरू कर दिया। यानी कि कैलकुलस की अपने ठीक है एग्जाम है, वट एवर द रेलिवेंट फार्मूला आर देयर, सो फार्मूला शीट इज देयर। क्योंकि मैं वोल्फ्राम अल्फा इज देयर, वोल्फ्राम अल्फा में आप कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डालें, और शायद आज हमें भी कोई इंटीग्रेशन का कोई मुश्किल सा क्वेश्चन आ जाए और मुझे कहा जाए करे, तो मैं आई डोंट स्पेंड टाइम इन सॉल्विंग दोस पर्टिकुलर थिंग। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्कूल में आप लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीखा, लेकिन आज किसी को 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन दे दी जाए तो कोई हाथ से नहीं करता, लोग हर कोई कैलकुलेटर यूज करता है। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन की टेक्निक्स आना, इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना आना, ये कोई स्किल नहीं है। और इस वजह से आपको बिल्कुल भी स्टूडेंट को स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। और ये मैं भी कह रहा हूँ और ये आर्नोल्ड भी कह रहा है, ये आर्नोल्ड की बात है, मैं उसको दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ
कि स्टूडेंट को प्रोसीजर्स जो है उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ना कि रॉट लर्निंग, ओवर रिलायंस ऑन मेकिंग मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ हैवी बल्कि, जिसमें बहुत सारी चीजें हिफ्ज करनी हो। एक तो हमारे स्टूडेंट्स को भी काफी आदत है, और ऊपर से फिर डेफिनेटली कल्चर भी ऐसा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एब्स्ट्रैक्शन को आर्नोल्ड कहाँ प्लेस कर रहा है। उसने ये कहा था कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एसेंशियल है, वो भी खत्म नहीं हो जाती। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्शन आती कहाँ पे, जब आप ये सारी मराहल से गुजर जाए। तो इट शुड कम आफ्टर a student grasps a concept intuitively, ensuring mathematics remain a creative। और एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाते हुए भी वो दोबारा से वार्निंग दे रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्शन आप करें जरूर, लेकिन उसमें इस तरीके का होना चाहिए कि आप एक्सप्लोरेशन डिसिप्लिन के तौर पे मैथमेटिक्स को लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे इसकी एग्जांपल उसने, बाय द वे, इस आर्टिकल को पढ़ें। सो इसमें मैथमेटिशियंस के लिए उन्होंने सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ही सेड दैट, ये उसने जो केस बिल्ड की है, ये नहीं है कि उसे बैठे बैठाए किसी पे गुस्सा आया था तो उसने आर्टिकल लिख दिया। ही बेसिकली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इट। एंड he spent a lot of time teaching to school kids in Russia। और ही एक्सप्लेन दैट कि मैंने स्कूल के बच्चों को ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी एक्सप्लोरेशन के थ्रू। एंड दो स्कूल किड्स बेसिकली